ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करूं? हाँ सर। ओके, so this is lecture number 4, and in this lecture we will cover types of network. We will talk about some personal area network, local area network, metropolitan area network, and wide area networks, and how they are different to each other. We will discuss some characteristics, and then we will start the next topic, introduction of OSI reference model. Open system interconnections, which having 7 different layers, each layer having certain characteristics and their functionalities. So we will discuss two topics. So let's begin the lecture. Now the format of the question for this topic: explain the computer network with their scale. स्केल के बेस पर कंप्यूटर नेटवर्क को आपको एक्सप्लेन करना है, किसका स्केल कितना होता है, साइज के बारे में यहाँ पे बताना है. सो अगर इस तरह क्वेश्चन आए सो आपको डायरेक्टली पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, आपको इन्हीं 4 नेटवर्क के बारे में बताना है. या तो डायरेक्टली शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट मीन्स राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लैन, मैन, वैन, इस तरह से. So let's start. There are 3 types of network based on scale or scope or size. First is personal area network. Abbreviation is PAN. PAN stands for personal area network. Second is local area network, and the abbreviation is local LAN. LAN. Third one is metropolitan area network. Abbreviation is MAN. And fourth one is wide area network, and abbreviation is WAN. Now the first, personal area network. The interconnection of devices within the range of individual person, typically within the 10 meters of range. That means if we have certain laptops or mobile devices, we start the Bluetooth or hotspot, and we can connect so many devices, wireless devices within the 10-meter of range. Then we design a personal area network. For example, a wireless network connection, a computer with its keyboard, mouse and printer is a personal area network. Now, if we talk about the example of personal area network, like wireless keyboard, wireless mouse, and wireless printer is the best example of personal area network, in which having the sensor and keyboard, mouse, or printer can be connected without wire, but it can work within the limited range. And the range is very specific in personal area network, that is 10 meter. Also we have some devices like PDA, personal digital adapter, that control the user hearings aid, or peacemaker fits in his category. So some PDA devices is also comes into the personal area networks, but it is not popularly so far. These devices are so popular, so keep these examples in your mind. Wireless keyboard, wireless mouse, or wireless printer is the best example which creates personal area network. Another example is your Bluetooth devices. Your Bluetooth is works in certain range. It can also create a personal area network, and it can works within 10 meter of range.
So another example of personal area network is Bluetooth. Typically, this kind of network could also be interconnected without wires to internet or other networks. We know that we have to just start the Bluetooth and our devices start connecting with the other devices. So by sharing the Bluetooth, by starting the Bluetooth, we can start exchanging the data from one devices to other devices. That means we are connected with the network. So this is all about personal area network. Now come to the second, local area network. Privately owned network covering a small geographic area like home, office, building or a group of building called campus. So लोकल एरिया नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, कितने बड़े एक जियोग्राफिकल एरिया को कवर सकता है, कर सकता है. तो लाइक आपके होम का नेटवर्क, आपके ऑफिस का नेटवर्क, एक बिल्डिंग का नेटवर्क और एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जैसे हमारा पीजीआई कॉलेज, एक कैंपस, एक यूनिवर्सिटी, इसको हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की साइज को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, जिसमें एक पूरी बिल्डिंग कवर हो जाए, बिल्डिंग के कई सारे फ्लोर कवर हो जाए, एक पूरा कैंपस, एक पूरा यूनिवर्सिटी कवर हो जाए, एक ऑफिस पूरा कवर हो जाए जिसमें कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्किंग में हैं, एक सर्वर से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट. तो इस तरह के एग्जांपल्स कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स. नाउ दे आर वाइडली यूज्ड to connect computers in company office and factories to share resources. और लोकल एरिया नेटवर्क क्यों बनाए जाते हैं? सो इसका पर्पस यही है कि हम रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं. यदि हम 15 एम्प्लॉय के बीच में हम एक प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं तो हमें लोकल एरिया नेटवर्क बनाना ही होगा. उन सभी 15 डिवाइसेस में हमें इथरनेट कार्ड को पुट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, उससे रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं उन्हें हमें इंस्टॉल करना होगा, तभी हम उस डिवाइसेस को शेयरिंग मोड पे यूज़ कर सकते हैं और वो नेटवर्क का पार्ट बन सकती है. तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है जो हमें उन 15 डिवाइसेस और प्रिंटर के बीच में करने होंगे, तभी नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा और फिर प्रिंटर शेयरिंग मोड पर आकर एज अ रिसोर्सेस शेयर्ड हो जाएगा और 15 यूज़र कभी भी अपना प्रिंटिंग वर्क एक पर्टिकुलर प्रिंटर से कर सकते हैं. LAN आर रिस्ट्रिक्टेड इन साइज. लोकल एरिया नेटवर्क की भी एक लिमिटेशंस है, which means that the worst case transmission time is bounded and known in advance. लोकल एरिया नेटवर्क की एक लिमिटेड साइज है, वो साइज में रिस्ट्रिक्टेड होता है. इसका मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस में इसका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि एक डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क में शेयरिंग मोड पर आ जाती है और जब शेयरिंग मोड स्टार्ट हो जाता है, कोई डिवाइस शेयर्ड हो जाती है, तो उसका चैनल, उसकी जो बैंडविड्थ है वो शेयर हो जाती है. इस कारण से उसमें वर्स्ट केस एनालिसिस अगर हम देखें, वर्स्ट केस ट्रांसमिशन, तो वो ट्रांसमिशन टाइम कम हो जाएगा. Knowing this bound makes it possible to use certain kind of design that would not otherwise be possible. और इस limitations के कारण, इस bounding condition के कारण हम एक बहुत बड़ा local area network नहीं बना सकते. सपोज दो बिल्डिंग के बीच में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. तो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, सर्टेन किलोमीटर का डिस्टेंस है, सो वी कैन नॉट इस्टेब्लिश द लोकल एरिया नेटवर्क. तो ऑफिसेस के बीच में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगेन वी कैन नॉट एबल टू इस्टेब्लिश अ लोकल एरिया नेटवर्क. तो सर्टेन एक होम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर, इनको यदि हमें कनेक्ट करना है तो हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं. बट इस रेंज के ऊपर जाते हैं तो फिर
हम लोकल एरिया नेटवर्क की साइज को एक्सीड कर जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। इट ऑल्सो सिंप्लीफाइज नेटवर्क मैनेजमेंट। लोकल एरिया नेटवर्क जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं तो बड़े सिंपल होते हैं इनको मैनेजमेंट करना, क्योंकि हमें जस्ट नोड चाहिए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, हमें स्विच चाहिए, हमें राउटर चाहिए, केबल्स चाहिए, RJ45 कनेक्टर चाहिए, कुछ क्रिम्पिंग टूल चाहिए। इनसे बेस पर हम एक लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं और विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन हम प्रॉपरली हम अपने रिसोर्स की, हमारे इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो सिंप्लीफाई नेटवर्क मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल LAN runs at a speed of 10 Mbps to 100 Mbps। यदि इसकी स्पीड की बात की जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क किस स्पीड से काम करता है, तो 10 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड एंड 200 Mbps। सो 10 Mbps टू 100 Mbps की स्पीड से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा की ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग पॉसिबल है। यहाँ पर 10 Mbps टू 100 Mbps डिपेंड करता है कि हम उस लोकल एरिया नेटवर्क को किस मीडियम से तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी उसका कम्युनिकेशन मीडियम होगा, जो भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा, अगर सपोज वो केबल है, यदि हम एक केबल वाला लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करने में इंटरेस्टेड है, तो केबल की बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल होती है मार्केट में। इसमें ट्विस्टेड केबल भी आते हैं, कोएक्सियल केबल भी आते हैं। ट्विस्टेड और कोएक्सियल केबल में भी कैटेगरी आती है, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 6.1, 6.2 एंड सो ऑन। बहुत सारी कैटेगरीज मार्केट में अवेलेबल होती है। आप जितना बेस्ट कैटेगरी का केबल परचेस करते हो, उतना बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम तैयार होता है। और बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम से मेरा कहने का मतलब है कि वो स्पीड अच्छी देगा डेटा ट्रांसमिशन की। और यदि आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल बना देते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो कि सबसे फास्ट ट्रांसमिशन मीडियम है आज के समय में, यदि आप उससे एक लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर देते हो, तो फाइबर ऑप्टिक्स मीडियम लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है और लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन करती है अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग। और कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो सबसे स्पीडली मूव करता हो एयर में, वो है केवल लाइट, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8, शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 3 इंटू 8 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 करोड़ से भी ज़्यादा एरिया, मतलब 3 करोड़ मीटर को कवर कर देती है एक सेकेंड के अंदर। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल से यदि हम कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो उससे हम काफ़ी अच्छी स्पीड ला सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन की। जियो का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस जियो ने पूरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल से ही अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसी के कारण हम इस स्पीड से काम कर पा रहे हैं, जो आज के समय में 3G 4G इवन 5G भी अब स्टार्ट होने वाला है। तो इतनी जो नेटवर्क में स्पीड आ रही है, वो उसके ट्रांसमिशन मीडियम की क्वालिटी के कारण आती है। तो 10 Mbps की भी स्पीड पे हम काम कर सकते हैं और हम 100 Mbps की स्पीड पे भी काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम किस तरह का लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इथरनेट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारे सिस्टम में जो मदरबोर्ड है उसका क्या क्वालिटी है, ये सब चीज़ें उसके ट्रांसमिशन स्पीड पर इफ़ेक्ट करती है। सो एक लोकल एरिया नेटवर्क का ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो स्पीड 10 Mbps टू 100 Mbps के बीच में वेरी कर सकती है एंड मेक अ वेरी फ्यू एरर्स। इसमें एरर्स भी बहुत कम आएगी। न्यू लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑपरेट एट अप टू 10 Gbps। आज के जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये तो काफ़ी पुरानी बात है कि वो 10 Mbps और 100 Mbps के बीच में काम करते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस, इतनी फास्ट डिवाइसेस अवेलेबल हो चुकी है जो कि हमें 10 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से एक लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलाउ करती है, राइट। सो ये है लोकल एरिया नेटवर्क।
उसका साइज क्या होगा, उसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है, उसकी साइज क्या होगी, और उसका कंस्ट्रक्शंस कैसे हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया। नाउ लोकल एरिया नेटवर्क अपने लिमिटेड साइज में काम करता है। अगर आप उसकी साइज बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी लॉस्ट होगी और डेटा एक्सचेंजिंग में डिले होगा। यदि आप इस तरह का डिले नहीं चाहते हैं तो आपको उससे बड़ा नेटवर्क बनाना होगा, और वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैन। covers a larger geographical area than in is a LAN। लोकल एरिया नेटवर्क जिस रेंज में काम करता है उससे बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, रेंजिंग फ्रॉम सेवरल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग टू एंटायर सिटीज। यदि लोकल एरिया नेटवर्क एक सिटी में काम करता है, एक सिटी में एक बिल्डिंग के अंदर काम करता है, तो पूरी सिटी को अगर हमें करना है जिसमें कई सारे बिल्डिंग्स हो, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हो, इन सबको आपको कनेक्ट करना हो तो आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज में जाना पड़ेगा। Metropolitan area network man can also depends on communication channel of moderate to high data rates। जब भी हम एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन चैनल है उसकी जो स्पीड होती है वो मॉडरेट मतलब एक एवरेज स्पीड से लेकर हाई डेटा रेट्स तक जा सकती है। बट ज़्यादातर जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होते जाता है इट कैन स्पीड अवर मॉडरेट, वो अपनी स्पीड को मॉडरेट कर देता है, एवरेज कर देता है। जबकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में इस मॉडरेट से ज़्यादा हाई डेटा रेट्स अवेलेबल होती है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क में उससे भी ज़्यादा डेटा रेट्स अवेलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा आप रिमोट से कितनी स्पीडली चैनल को चेंज करते हो, तो टीवी के जो रिमोट्स है जो कि इंफ्रारेड सिग्नल पे काम करते हैं वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल माना जाता है, राइट। तो 10 मीटर की रेंज में आप बड़ी स्पीड से चैनल चेंज करते हो, वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट होती है, चैनल सेलेक्ट होते हैं, चैनल स्टार्ट हो जाते हैं, रैपिडली आप उस चैनल को बदल भी देते हैं। तो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में काफ़ी स्पीड से होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, देन उसके बाद स्पीड में थोड़ा कमी आनी स्टार्ट होती है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कम स्पीड पे काम करता है। तो इसकी स्पीड की अगर बात करें तो ये मॉडरेट टू हाई डेटा रेट दे सकती है। हाई डेटा रेट यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि यदि आपको हाईली कॉन्फ़िगरेशन रखना है, आपको कॉस्ट पर खर्च करना है, मतलब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए आप कॉस्ट पे करने के लिए रेडी है, तो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डेटा एक्सचेंजिंग काफ़ी स्पीड से हो सकता है। बट आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक पूरी सिटी कवर करनी है, क्योंकि आपको आपकी कई सारे ऑफिसेस उस सिटी में अवेलेबल है, आपके कई सारी ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर सिटी में बिलोंग करती है, राइट। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में होता है कि आईबीएम के 3 अलग अलग सिटी में ऑफिस है, एक ही सिटी के अंदर उसके कम से कम 10 ऑफिसेस हैं। अब उन सभी ऑफिसेस को उसको कनेक्ट करना है ताकि उन ऑफिसेस में कौन सी वर्किंग चल रही है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, उन सभी को अगर वॉच आउट करना है तो उसे हाई डेटा रेट चाहिए होगा, और इसके लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पे करना होगा, काफ़ी खर्च करना होगा। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की डेटा स्पीड उसके चैनल का जो बैंडविड्थ होगा उसमें मॉडरेट टू हाई डेटा रेट्स हो सकता है। A metropolitan area network might be owned and operated by a single organization, but it usually will be used by many individuals and organization। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर्सनल भी हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आईटी इंडस्ट्री में एक आईटी इंडस्ट्री का कोई ऑनर है, राइट। सो सपोज बिल गेट्स का है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन तो हर एक सिटी में है, हर एक कंट्री में है, मैक्सिमम कंट्री उसने कवर की है। तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया ओन भी हो सकता है, उस पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ऑनर एक बंदा हो सकता है, या फिर वो किसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। Metropolitan area networks might also be owned and operated as public utilities।
एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक पब्लिक यूटिलिटीज के थ्रू भी, पब्लिक यूटिलिटी के जैसे भी ऑपरेट हो सकता है। जिससे हम लोग जो वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जितना भी हम सर्चिंग करते हैं, राइट, तो ऑनलाइन यदि हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। ये जितनी भी टेलीफोन नेटवर्किंग कंपनीज़ है, टेलीफोन नेटवर्किंग कंपनीज़ में उन वो लोग जो हमें सर्विस प्रोवाइड देते हैं वो सभी हमारी पब्लिक यूटिलिटी। तो मोबाइल जितना भी है वो सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। दे विल ऑफन प्रोवाइड मीन्स फॉर इंटरनेटवर्किंग ऑफ लेंस। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैन स्पैम अप टू 50 किलोमीटर। यहाँ पे एक रेंज बताई गई है कि आप एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कितना स्केल आउट कर सकते हैं। तो ये 50 किलोमीटर की रेंज में स्केल अप हो सकता है, आप इसको फैला सकते हैं, ये काम कर सकता है प्रॉपरली। डिवाइसेस यूज्ड आर मॉडर्न एंड वायर केबल। इसमें जो डिवाइसेस यूज होगी वो मॉडर्न होगी और वायर के थ्रू कनेक्टेड होगी। बट आजकल तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी बहुत सारी वायरलेस डिवाइस आ चुकी है जो कि अलग अलग बिल्डिंग को कनेक्ट करके रखती है। ये था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि काफ़ी बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता हो, मतलब कि सिटीज़ से भी ज़्यादा। एक पूरी कंट्री को अगर कवर करना है तो हमें वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे गूगल के सर्वर। ऑफन अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट, मतलब कि मोर देन वन कंट्री। हमें पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। यदि हमें मोर देन वन कॉन्टिनेंट को भी कवर करना है या मोर देन वन कंट्री को कवर करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क की ओर मूव करना होगा। एनी नेटवर्क हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। Less formally, a network that uses router and public communication links. Router will be discussed later. तो सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये एक पूरी पूरी कंट्री, एक पूरा कॉन्टिनेंट भी कवर कर सकता है। डायग्राम के थ्रू देखें तो कुछ स्क्वायर मीटर की रेंज में पर्सनल एरिया नेटवर्क काम करता है। एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर विथ इन 10 मीटर की रेंज में, 100 मीटर की रेंज में, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की रेंज में एक लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है। 10 किलोमीटर की रेंज में जहाँ में एक पूरी सिटी कवर हो सकती है, उस सिटी के अंदर कई सारे बिल्डिंग्स है वो कवर हो सकते हैं, तो उस रेंज में काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थाउजेंड्स किलोमीटर की रेंज में काम करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों ही कवर हो सकते हैं। तो एक सिंपल शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये चारों नेटवर्क पे आपको आइडिया होना चाहिए क्या लिख। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर पे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमें पता था कि एक OSI रेफरेंस मॉडल एग्जिस्ट है, एक वर्चुअल मॉडल है जो कुछ लेयर का कलेक्शन है। टोटल 7 लेयर से मिलकर एक OSI रेफरेंस मॉडल बना हुआ है, और उस मॉडल में हर एक लेयर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ हार्डवेयर और कुछ प्रोटोकॉल से कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। दैट मीन्स कुछ लेयर डायरेक्टली हार्डवेयर का पार्ट है, हार्डवेयर से इम्प्लीमेंटेड की गई है,
जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और नेटवर्क लेयर है। ये जो तीनों लेयर है ये मोस्टली हार्डवेयर का कलेक्शन है। यदि हमारे पास वो हार्डवेयर है और उससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स है, सॉफ्टवेयर्स है, यदि वो हमारे पास अवेलेबल है तो हम इन तीनों लेयर को बना सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये जो चारों लेयर है, कंप्लीटली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन से बनती है। और टॉप की जो 3 लेयर्स है वो प्रोटोकॉल प्लस हार्डवेयर, इनसे डिज़ाइन होती है। बट है एक पूरा वर्चुअल मॉडल। यदि हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हम जब मेल करते हैं तो मेल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है हमारे दूसरे क्लाइंट की ओर, हमारे फ्रेंड की ओर कैसे ट्रांसफ़र होता है, मेल उसके इनबॉक्स में चला कैसे जाता है। यदि हम गूगल से कोई भी सर्च करते हैं, कुछ भी कीवर्ड सर्च करते हैं, कुछ भी कंटेंट निकालते हैं, इमेजेस निकालते हैं, तो सर्वर तक वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है और सर्वर उसको कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारे टर्मिनल पे पहुंचा देता है। तो ये पूरा एग्जीक्यूशन यदि आपको समझना है, पूरा इंटरनेट में डेटा एक्सचेंजिंग समझना है, तो आपको OSI रेफरेंस मॉडल का नॉलेज होना ज़रूरी है। यही हमें बताता है कि एक एप्लीकेशन लेयर पर जो एंड यूज़र बैठा हुआ है, जैसे अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, जैसे मैं टीम से यहाँ पे कुछ कंटेंट शेयर करता हूँ तो आप तक वो कंटेंट पहुँच रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्शन आप तक पहुँच रहा है। इसका मतलब डेटा की एक्सचेंजिंग तो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। बट ये किस तरह से होता है, इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है, कौन कौन सी लेयर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे डेटा को प्रॉपरली ट्रांसमिट करने के लिए, वो सभी डिटेल हमें OSI रेफरेंस मॉडल से ही मिलेगी। सो यही अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। सबसे फर्स्ट लेयर की बात करें OSI रेफरेंस मॉडल में, वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल लेयर हमारे डेटा को किस तरह से एक्सचेंज करता है, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को रखता है, उसकी डेटा रेट क्या हो सकती है, हमारा डेटा किस तरह से सिंक्रोनाइज होता है, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, कौन कौन सी टोपोलॉजी में फिजिकल लेयर डेटा ट्रांसमिट कर सकती है और ट्रांसमिशन के मोड क्या हो सकते हैं। OSI मॉडल, इंट्रोडक्शन ऑफ OSI मॉडल। सॉरी। सबसे पहली बात तो ये कि OSI मॉडल किसने डिज़ाइन किया था, ऐसी कौन इस तरह का वर्चुअल मॉडल के बारे में सोचा और इस वर्ल्ड सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का प्लान किया। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ISO। ISO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में सोचा, उसकी वर्चुअलिटी के बारे में सोचा और कौन कौन सी लेयर एग्जिस्ट कर सकती है, वो लेयर किस तरह से अपने फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगी हमारे डेटा पैकेट्स पे, हमारी फ्रेम्स पे, सेगमेंट्स पे, राइट, और किस तरह से 2 लेयर आपस में कनेक्टेड हो सकती है इंटरफेस के थ्रू, उसके बारे में स्टडी किया था ISO ऑर्गेनाइजेशन ने। So OSI reference model established in 1947, the International Standard Organization, that is the full form of ISO, International Standard Organization, is a multinational body dedicated to
World Wide Web Agreement on International Standards, an ISO standard that covers all aspects of network communication is the Open System Interconnection Model. तो ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन करती है, प्रोटोकॉल डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है कि पूरे वर्ल्ड के डेटा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर है वो सभी किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं और उनके लिए क्या क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं जिनसे ये पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर है, जो डिवाइसेस है, वो आपस में कनेक्टेड हो जाए और डेटा के ट्रांसफरिंग स्टार्ट हो जाए। दैट मीन्स नेटवर्क में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। इस थॉट के साथ आईएसओ ने एक मॉडल जब बनाया, उस मॉडल का नाम दिया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट ऑफ 1970। ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो डेवलप किया गया था 1970 में डेवलप किया गया था। An open system is set of protocol that allow any two different system to communicate regardless of their underlying architecture। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मशीन में कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड है, कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है, कितनी जीबी रैम है, इट डजेंट केयर अबाउट इट। इसके बाद भी हमारे सिस्टम नेटवर्क में काम करते हैं, वो कनेक्ट होते हैं और डेटा के ट्रांसफरिंग, डेटा की एक्सचेंजिंग दो डिवाइस के बीच में होती है। सो इस माइंडसेट को लेते हुए कि अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पे जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर है वो होता है हार्डवेयर डिवाइसेस का कलेक्शन जो मदरबोर्ड में रहता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, कितनी रैम है, कितनी स्पीड का इथरनेट कार्ड है, ये बनाता है उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर किसी कंप्यूटर का। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलाइन आर्किटेक्चर, मतलब कि डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। कम से कम स्पीड का मदरबोर्ड भी यदि आपके पास है तो आप उसके अंदर इंटरनेट की सर्फिंग कर सकते हैं। इथरनेट कार्ड की भी स्पीड अगर कम है तो भी इंटरनेट पॉसिबल है। प्रोसेसर की स्पीड अगर कम है, आपने बहुत हाईली कॉन्फ़िगर्ड प्रोसेसर नहीं लिया है, सिंपल आप पेंटियम की सीरीज का कोई भी एक लोएस्ट स्टैंडर्ड वाला प्रोसेसर यूज़ करते हो, या पेंटियम से भी लोएस्ट क्वालिटी जो सेलरॉन की है, राइट, एएमडी प्रोसेसर है, यदि आप ये प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं तो भी आप एक कंप्यूटर से इंटरनेट चला पाते हैं। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक्चुअली में कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो अलाउ करते हैं सिस्टम को कि वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करें। जैसे यदि हम आपस में दो लोग बात करना चाहते हैं तो हमें कोई लैंग्वेज चाहिए, वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, गुजराती हो सकती है, इट मे बी एनी लैंग्वेज। बट अगर हमें लैंग्वेज का नॉलेज है तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक शर्त है कि वो लैंग्वेज दोनों कंप्यूटर को समझ आनी चाहिए, दोनों पर्सन को समझ आनी चाहिए, राइट। अगर आपको हिंदी क्लियर होती है तो आप मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स दो डिवाइसेस या दो पर्सन किसी एक इंटरफेस से कनेक्टेड है और वो इंटरफेस दोनों सिस्टम के थ्रू अंडरस्टैंडिंग में है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। The purpose of OSI model to show how to facilitate communication between different system without requiring change to the logic of the underlying architecture or underlying hardware and software। OSI रेफरेंस मॉडल का एक ही पर्पस था कि आप अपने सिस्टम के अंडरलाइन आर्किटेक्चर को चेंज ना करें, इसके बावजूद आप दो मशीन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ पॉसिबल भी हुई लेयर्स की हेल्प से। OSI मॉडल इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। यदि OSI मॉडल का इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या OSI मॉडल एक सॉफ्टवेयर है, सो नो, इंडिविजुअली इट इज़ नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर। तो क्या OSI रेफरेंस मॉडल एक हार्डवेयर है? सो अगेन व्हाट विल बी द आंसर, इट इज़ नॉट अ सिंगल हार्डवेयर। सो है क्या एक्चुअली में OSI मॉडल? इट इज़ अ वर्चुअल मॉडल जिसमें टोटल 7 लेयर्स है और हर लेयर कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल और हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे आप कॉलेज में आते हो, लैब में बैठते हो, तो वहाँ पे आपको
तीन लेयर दिखाई देती है, आपको सिस्टम आपस में कनेक्टेड दिखाई देते हैं बाय यूजिंग केबल, तो वो है हमारी फिजिकल लेयर। आपके सिस्टम जिस मशीन पर आप बैठते हो, इंटरनेट की सर्फिंग करते हो, तो उस मशीन के अंदर एक इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, इथरनेट कार्ड में एक इथरनेट केबल लगा हुआ है, और वो केबल स्विच में से निकल के आता है, और स्विच में एक केबल आता है जो राउटर से आता है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है और आपका सिस्टम नेट सर्फिंग के लिए अलाउ है। तो सिस्टम में ये जो इथरनेट कार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसका जो फिजिकल एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि जिस मशीन से आप इंटरनेट की सर्फिंग करते हो, ब्राउज़र पे आप कुछ भी कंटेंट सर्च करते हो, तो वो कंटेंट का रिस्पॉन्स आपकी मशीन पर ही आता है, आपके ब्राउज़र पर ही आता है। आपके साइट में अगर कोई दूसरा यूज़र बैठा है, आपका फ्रेंड बैठा है, अगर वो टाइप करता है व्हाट इज़ ओएसआई रेफरेंस मॉडल और आपने टाइप किया है व्हाट इज़ इंटरनेट, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिलता है सर्वर से। तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड है, बट इथरनेट कार्ड के थ्रू वो डिटेल जो क्वेरी है उसका आंसर आपके ही मशीन पे आता है। और इससे ये क्लियर होता है कि उसका एक प्रॉपर मैक एड्रेस भी होता है। जैसे आप लोग सभी लेक्चर में कनेक्टेड है, सभी का जो घर का एड्रेस है वो यूनिक है, राइट, वो कभी बदलता नहीं है जब तक कि आप कोई दूसरा घर ना ले। तो नॉर्मली जो घर के एड्रेसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो रैपिडली बदले नहीं जाते। तो ऐसे एड्रेस जो कभी बदलते नहीं हैं, जो जिस समय वो मैन्युफैक्चर होते हैं, जिस समय वो डिज़ाइन होते हैं, जब आपका घर बन रहा होता है उसी समय उसका एड्रेस तैयार होता है, और फिर एक बार एड्रेस तैयार हो गया तो फिर वो एड्रेस बदलता नहीं। तो यही एड्रेस मैक एड्रेस कहलाता है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस के होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, इथरनेट कार्ड, हार्ड डिस्क, राइट। आपके इवन मोबाइल का भी एक मैक एड्रेस है जिसको आप IMEI नंबर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल का भी एक हार्डवेयर एड्रेस होगा। आप जब मोबाइल की इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपके मोबाइल का एक लॉजिकल IP एड्रेस होगा, जिसको हम IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 के अकॉर्डिंग उसमें सेट होगा, राइट, जिसको IP एड्रेस बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। और एक होगा जो उसका मैक एड्रेस होगा। सो OSI रेफरेंस मॉडल में यही था कि दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट पर कर पाए, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंजिंग कर पाए, बिना ये कि उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या है, उसके लॉजिक को हमें चेंज नहीं करना है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेंजेस नहीं करना है। इसके बावजूद हम उन दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और OSI मॉडल अपने आप में एक वर्चुअल मॉडल है जो कि 7 लेयर का कलेक्शन है। इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। इंडिविजुअली ये ना ही कोई सिंगल सॉफ्टवेयर है और ना ही सिंगल हार्डवेयर है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या है। अगर आपसे वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट इज़ नॉट अ सिंगल सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में कौन कौन से हार्डवेयर आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो कोई एक दो सॉफ्टवेयर और कोई एक दो हार्डवेयर नहीं है। जब आप 7 लेयर को अच्छे से 1 बाय 1 लेयर को आप अच्छे से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक लेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने प्रोटोकॉल्स और कितने सारे हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन OSI रेफरेंस मॉडल। इस तरह से इसका लेयर्ड आर्किटेक्चर है। सबसे बॉटम में होती है फिजिकल लेयर, देन वेरी टॉप लेयर ऑफ OSI reference model from the physical layer is data link layer, then top layer of data link layer is network layer, then transport layer, then session layer, then presentation layer, then application layer. We cannot change the order, so we can learn by rhymes. पारो डाटो नहीं तुम्हारी सहेली फिर आएगी। तो फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. So this is the way how to recognize the order of the OSI reference model. Now each layer are connected with interface. हर दो लेयर के बीच में एक इंटरफेस होगा
इंटरफेस उन दोनों को वर्चुअली कनेक्ट करके रखती है और इंटरफेस से ही कंपेटेबिलिटी मोड सेट होता है कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर आपस में काम कैसे करेगी। जब फिजिकल लेयर का काम हो जाएगा तब वो डेटा लिंक लेयर को डेटा ट्रांसफ़र करेगी। डेटा लिंक लेयर का जब अपना टास्क परफॉर्म हो जाएगा तब वो नेटवर्क लेयर को डेटा ट्रांसफ़र करेगी एंड सो ऑन इट विल रीच टू द एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर यूज़र होता है। नाउ इस डायग्राम को अच्छे से समझिए कि ये किस तरह से फ्लो होगा। एक यूज़र यहाँ पर है डिवाइस ए पर और दूसरा यूज़र जो आपका फ्रेंड है वो बैठा हुआ है डिवाइस बी पर। यहाँ से आप उसको मेल सेंड करते हैं और वो मेल यहाँ पे रिसीव करता है। जिस यूज़र ने जिस डिवाइस पर एक मेल को डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन करना किसी ना किसी एप्लीकेशंस की हेल्प से होता है। जैसे आप गूगल का मेल सर्वर यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाके आप इनबॉक्स के आप लॉगिन करते हो जीमेल सर्वर से, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, फिर आप कंपोज में जाकर कुछ टाइप करते हो, कुछ उसमें एड्रेसेस डालते हो। तो वो सब काम हमारा एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशन के बाद वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है और इसके बीच में एक इंटरफेस है। प्रेजेंटेशन लेयर अपना टास्क परफॉर्म करेगी, उसकी जो भी फंक्शनलिटी है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हर एक लेयर की फंक्शनलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो लेयर परफॉर्म करने के बाद उसको नेक्स्ट जो बॉटम लेयर है उसे ट्रांसफ़र कर देगी और हर लेयर उसके साथ कुछ हेडर या फूटर, हेडर और ट्रेलर ये दोनों लगाने के बाद उसको नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसफ़र कर देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन लेयर का काम फिनिश हो चुका है सो इट विल ट्रांसफ़र द डेटा बाय एडिंग हेडर एंड ट्रेलर टू द प्रेजेंटेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर से जब प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा आता है तो उस डेटा में फ्रंट में हेडर लग जाएगा और बॉटम में एक ट्रेलर लग जाएगा। तो हर लेयर ये काम करती है, अपना हेडर और अपना ट्रेलर जरूर लगाती है। फाइनली ये जब फिजिकल लेयर पे आ जाता है तो फिजिकल लेयर उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करके जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको रिसीवर की डायरेक्शन में पहुंचा देती है। रिसीवर की डायरेक्शन में वापस से ये फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा डेटा लिंक लेयर के अकॉर्डिंग, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा नेटवर्क लेयर के अकॉर्डिंग, देन गोज ऑन इट विल रीचेस टू द डिवाइस बी। और फिर यहाँ पर जो यूज़र है जिसके इनबॉक्स में मेल आ जाता है वो यहाँ से देख लेता है। तो दो यूज़र के बीच में जब भी डेटा की एक्सचेंजिंग होती है, डेटा की कम्युनिकेशन होती है, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग होती है, कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो पूरा OSI रेफरेंस मॉडल यहाँ पे भी काम करता है और यहाँ पे भी काम करता है और इस तरह से लेयर पीयर टू पीयर कनेक्शन भी करता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये बताता है कि दो यूज़र के बीच में एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर भी एक पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। इसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर डिवाइस ए और बी के बीच में भी एक पीयर टू पीयर कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे पीयर टू पीयर कनेक्शन है कि दो डिवाइसेस लॉजिकली कनेक्टेड है बाय यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स। किसी प्रोटोकॉल की हेल्प से दो लेयर आपस में कनेक्टेड है और इंटरफेस के थ्रू दो लेयर आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह के कनेक्शंस को हम पीयर टू पीयर कनेक्शन कहते हैं। बाकी जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये डायरेक्टली हार्डवेयर का कलेक्शन है, तो यहाँ पर पीयर टू पीयर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जो कि लॉजिकल कनेक्शंस बनाए। बाकी ऊपर की जो 4 लेयर है उसमें पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पीयर टू पीयर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जो वर्चुअली दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। किस तरह से हर एक लेयर अपना हेडर ऐड करती है। 7th लेयर अपना हेडर ऐड करेगी, डेटा ऐड करेगी। यहाँ पे इन्होंने ट्रेलर लगाया नहीं है बट ट्रेलर भी काफ़ी लेयर करती है कि उसमें ट्रेलर भी लगाएं जिससे कि
उसके अंदर अगर एरर आती है तो वो क्लियर हो जाती है। तो अगर 7th लेयर अपना हेडर लगाती है तो यहाँ पे H7 दिखाई दे रहा है, और 7th लेयर का जो डेटा है वो D7 है। इसी तरह से जब डेटा नीचे आ जाएगा तो जो प्रेजेंटेशन लेयर है जो कि लेयर नंबर 6 है, तो लेयर नंबर 6 अपना हेडर लगाएगी H6 और उसका डेटा होगा D6। तो इस तरह से हर एक लेयर अपना हेडर भी लगाते चलती है। हेडर को रिसीव करके पता चल जाता है कि सेकेंड लेयर ने प्रॉपरली काम कर दिया है, ये डिटेल फर्स्ट लेयर को पता चलनी चाहिए। थर्ड लेयर ने अपना काम प्रॉपरली कर दिया है, ये सेकेंड लेयर को पता चलना चाहिए। तो वो कैसे पता होगा? एक हेडर को देखते हुए। अगर ऑलरेडी उसके अंदर D2 लगा हुआ, H2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो सेकेंड लेयर है उसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया है। अब अगला टास्क परफॉर्म करेगा लेयर नंबर 1। सो ये एक फ्लो बताया जा रहा है यहाँ पे कि हर एक लेयर अपना डेटा के ऊपर काम करता है और अपना हेडर लगा देता है और उसको नेक्स्ट मूविंग जो लेयर है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से पूरा डेटा नीचे डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, फिर वो फिजिकल लेयर के पास आता है, फिर उसका बाइनरी सीक्वेंस तैयार हो जाता है। देन उसका इलेक्ट्रिकल पल्स की कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है। अगर ये फाइबर ऑप्टिक्स होगा तो लाइट का फॉर्म बन जाएगा। अगर केबल्ड है जिसमें कॉपर वायर है, जिसमें कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड केबल हो सकती है जिसके अंदर एक कॉपर वायर होता है और कॉपर वायर में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा और फिर ट्रांसमिशन मीडियम से बाहर निकलेगा और फिर फिजिकल लेयर रिसीवर साइड पर हर एक हेडर को वन बाय वन रिमूव करता हुआ एप्लीकेशन लेयर पर केवल डेटा रिसीव होता है। तो यहाँ पर आपको केवल मेल रिसीव होता है, बट मेल में कितने हेडर लगे हुए थे, क्योंकि वो सातों लेयर को क्रॉस करता हुआ आया है, तो आप कभी भी 7 हेडर रिसीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हर एक लेयर अपना अपना हेडर को एलिमिनेट कर लेती है और केवल डेटा पोर्शन को आगे पास करती है। सो D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D6 अपना हेडर निकाल लेगी और फिर D7 अपना हेडर निकाल के केवल डेटा पोर्शन उस एंड यूज़र को दे देती है जो कि अदर साइड पर बैठा हुआ था एप्लीकेशन लेयर पे। तो इस तरह से एक OSI रेफरेंस मॉडल में डेटा की एक्सचेंजिंग होती है। तो इसका वर्किंग स्टाइल समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में OSI रेफरेंस मॉडल किस तरह से दो यूज़र के बीच में काम करता है, क्यों हेडर लगाने ज़रूरी है और किस तरह से लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र होता है। कभी भी किसी भी लेयर में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, सभी अपने अपने डेटा पे काम करते हैं, अपने अपने हेडर पे काम करते हैं और उसको प्लग करते हैं और फिर आगे लेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यदि आपको ये फ्लो समझ आता है तो फिर आप आगे जो लेयर्स है उन लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप आसानी से समझ पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फिज़िकल लेयर, और फिज़िकल लेयर किस तरह से काम करती है। फिज़िकल लेयर की जो टॉप लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर से उसको फिज़िकल लेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देती है। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद 1010 का जो कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल तैयार करेगी। जहाँ 1 होगा वो हाई होगा, जहाँ 0 होगा वो लो होगा। इस तरह से एक ट्रांसमिशन मीडियम के नेचर के बेस पर उसका सिग्नल तैयार होगा और वो सिग्नल मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो केवल इतना पोर्शन एक फिजिकल लेयर का है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन के बेस पर एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करना, एक ट्रांसमिशन सिग्नल जनरेट करना, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना और उसको रिसीवर के डायरेक्शन में सेंड करना, केवल फिजिकल लेयर को। केवल इतना काम होता है फिजिकल लेयर का। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सारी है, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा रेट्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड। इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करनी है ताकि हम फिजिकल लेयर को प्रॉपरली समझ पाएँ कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और वो क्यों ज़रूरी है।
उसके बाद डेटा लिंक लेयर आएगा। तो इस तरह से हम एक एक लेयर को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, समझेंगे कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक से अंदर क्या लिखा हुआ है और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सो ऑलरेडी 11:40 हो चुका है। सो आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर को इन डेप्थ।